production. Okay, so let us start and see how can we solve this question. Okay. Yes. Okay, so let us read the question first. From the following data, prepare a production budget of ABC Company Limited for 6 months period ending 30th June 2015. Stocks for the budgeted period, opening stocks are given and closing stocks are given, and other relevant data, normal loss in production and requirement to fulfill the sales program in units is given. I think we had solved this question, right? I think we had solved in our last class, I guess. Or maybe in the flexible budget we had solved, I don't know. Can anyone tell me whether we had solved this question or not? You had attended the last class, no? Last class? You had attended the last class or not? No, in the last class you were there in. Okay. Okay. So, very simple. How do we calculate? We need to calculate what? We need to calculate the production. So, generally, just imagine a trial balance. In a trial balance, first we write opening stock, then purchases, right? Here it will be sales and closing stock. If 3 figures are given and you have to find out one figure, then you can easily find out, है ना? इसमें क्या क्या दिया हुआ है? सेल्स दिया हुआ है और क्या है? ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है. सो यू कैन इजीली कैलकुलेट परचेजेस और प्रोडक्शन. ठीक है, परचेजेस और प्रोडक्शन यू कैन से. Okay, so we'll simply add sales plus closing stock and subtract opening stock to find out production, right? So sale plus closing stock less opening stock. ठीक है, सेल्स कितना है? प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट है अपने पास, ए बी एंड सी. ठीक है, 60,000, 50,000 and 80,000. Okay, now what is the closing stock? 10, 8 and 17,500. 10,000, 8,000 and 17,500. इससे हम लोग क्या माइनस करेंगे? ओपनिंग स्टॉक कितना है? 6,000, 9,000 and 12,000. So this is the production.
ठीक है, कितना आ रहा है प्रोडक्शन? 64,000, 49,000 एंड 85,500। ये फाइनल प्रोडक्शन चाहिए, लेकिन आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, आफ्टर नॉर्मल लॉस आई हैव टू गेट दिस, है ना। सो नॉर्मल लॉस को एडजस्ट करना पड़ेगा इसमें, नॉर्मल लॉस एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद मुझे मिलेगा टोटल प्रोडक्शन, रिक्वायर्ड प्रोडक्शन, ठीक है। कैसे करोगे? कितना नॉर्मल लॉस है? 4%। सो वील सिंपली मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 104, है ना। सो इट इज 24, किससे करोगे? 4/96 and not 104, 100 minus 4 because it is normal loss not normal gain, ठीक है। So 64,000 multiplied by 4 divided by 104, sorry 96, 2,666, or you can do it by dividing the 64,000 by 96%, ये वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा। यू कैन डू इट इन ईदर वे, ठीक है। इसको 7 कर देता हूँ, बेटर होगा, ठीक है। डायरेक्टली या तो 64,000 को 96% से डिवाइड कर दो, या फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 96, राइट। नेक्स्ट 49,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, नॉट 4, 2 by 98, it is 1,000 and 50,000, 4,500, so it is 90,000, ठीक है। ठीक है, समझ आया? चलो नेक्स्ट। The following data have been compiled for TTA tea company regarding the budget and the actual production of green tea packets for 6 months ending 30th June 2019. Production budget, ये बजट करवाया था आई थिंक लास्ट क्लास में, ऐसा क्यों लग रहा है? लास्ट क्लास में करवाया था ये, हाँ? ये करवाया तो लग रहा है। करवाया लग रहा है मुझे, ये था ना लास्ट क्लास। ये तो करवाया था, कहाँ तक करवाया था?
ये वाला शायद डिस्कस किया था बट सॉल्व नहीं किया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा ना। डिस्कस किया था, ये सॉल्व नहीं किया, बट इसका पहले वाला क्वेश्चन अभी जो सॉल्व किया दैट वी हैड ऑलरेडी सॉल्व्ड. सो let us do one thing, let us not again, because I have already discussed this question in the last class, so try to solve it on your own. If you are not able to solve, then you can tell me. Okay, let us move on to the next question. ABT Limited produces and sells single product Penco. Sales budget for the calendar year Q1, Q2, Q3, Q4. The year is expected to open with an inventory of 4000 units. 4000 units क्या है? Opening stock है of finished products and close at an inventory of 6500 units. Production is customarily scheduled to provide 2/3 of the current quarter's sales demand plus 1/3 of the following quarter's demand. मतलब प्रोडक्शन कुछ ऐसा करके डिजाइन करना है कि इस महीना का, इस क्वार्टर का जो डिमांड है उसका 2/3 प्रोड्यूस करना है और अगला महीना का जो डिमांड है उसका 1/3 प्रोड्यूस करना है. ठीक है, जैसे इस महीना का अगर 12,000 डिमांड है, इसका मैं एक Q1 में कितना प्रोड्यूस करूंगा, इसका 2/3 प्रोड्यूस करूंगा, है ना. और जो नेक्स्ट मंथ का है इसका 1/3. ठीक है. द प्रोडक्शन एंटिसिपेट्स सेल्स वॉल्यूम बाय अबाउट 1 month. क्या बोला है? 10. द प्रोडक्शन एंटिसिपेट्स सेल्स वॉल्यूम by 1 month. The standard details for 1 unit of product of Penco Limited is as follows. डायरेक्ट मटेरियल 10 kg के लिए चाहिए 50 पैसा पर kg. ठीक है, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, 10 kg चाहिए एट द रेट 0.50 पर kg. डायरेक्ट लेबर 1.5 घंटा का चाहिए एट द रेट 4 पर आवर. ठीक है. वेरिएबल ओवरहेड्स 1.5 घंटा चाहिए एट द रेट 1 पर आवर. ठीक है. फिक्स ओवरहेड चाहिए 2 पर आवर बेस्ड ऑन अ budget volume of 90,000 direct labor hours for the year. Based on the above information, you are required to answer the following questions. How many budgeted number of units to be produced for 4 quarters of the year 2021? ठीक है, कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करना है. सेकेंड थिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बजटेड प्रोडक्शन ओवर. फिर वैल्यू निकालना है Q2 का, Q3 का. ठीक है. व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द बजटेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर, और टोटल भी निकालना है. ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ द बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट, 3 चीज निकालना है. ओके okay? ठीक है, क्वेश्चन समझ आया. ठीक है, पहले क्या निकालना है, हाउ मेनी बजटेड नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर द 4 क्वार्टर्स. कैसे निकालोगे, क्या लिखा गया है यहाँ पे. यहाँ पे लिखा है कि करेंट क्वार्टर का 2/3 प्रोड्यूस करना है और नेक्स्ट क्वार्टर का 1/3, है ना. सो प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, टू-थर्ड ऑफ करेंट क्वार्टर. ठीक है, और 1/3 ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर, और ये बन जाएगा टोटल. ठीक है. सो दिस इज
Q1 का प्रोडक्शन, Q2, Q3 एंड Q4. ओके. करेंट क्वार्टर का 2/3 मतलब 12,000 का करंट क्वार्टर का प्रोडक्शन कितना है 12,000. सो 12,000 का 2/3 कितना आ रहा है 8,000. ठीक है. और नेक्स्ट क्वार्टर में कितना बजट है 15,000, उसका 1/3 मतलब 5,000. टोटल कितना बन गया 13,000. ठीक है. सिमिलरली नेक्स्ट क्वार्टर में बजट है 15,000, उसका 2/3 10,000 एंड उसका नेक्स्ट क्वार्टर कितना है 16,500 का 1/3 5,500. टोटल इज 15,500. राइट. Q3 में 16,500 का 2/3 11,000 एंड उसका नेक्स्ट क्वार्टर का 1/3 कितना 17,000. एंड Q4 में, हाँ Q4 में, अच्छा इसमें हम लोग एक चीज मिस कर दिए हैं जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक है ना. ठीक है. ठीक है. अभी तो फिलहाल तो प्रोडक्शन का बारे में बात कर रहे हैं. सो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है. फोर्थ क्वार्टर का नहीं दिया हुआ है ना, लेकिन एक क्लू दिया हुआ है. डायरेक्टली दिया हुआ नहीं कि नेक्स्ट क्वार्टर में कितना प्रोड्यूस होगा, नहीं दिया हुआ है. करेंट क्वार्टर को तो मुझे पता है. करेंट क्वार्टर कितना है 18,000, इसका 2/3. लेकिन 1/3 ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर दिया हुआ है. कहाँ 12,000? ओ ये सॉरी, नेक्स्ट क्वार्टर का कुछ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है नहीं, लेकिन दिया हुआ है. कहाँ पे दिया हुआ है पता है. ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, ये क्या है इस क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक है. इस क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है. सिमिलरली Q4 का क्लोजिंग स्टॉक कितना है 6,500. मतलब कि नेक्स्ट क्वार्टर में जितना प्रोड्यूस होगा उसका 1/3 ये है. समझ रहे हो. इनडायरेक्टली गिवन है. सो ऑलरेडी वी नो कि 6,500 यहाँ प्रोड्यूस होगा. सो टोटल इज 18,500. ठीक है. सो टोटल कितना हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन 64,000. ठीक है. ये हो गया नंबर 1. तो टोटल प्रोडक्शन इज 64,000 यूनिट्स. नेक्स्ट क्या निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर Q3 Q3 ऑफ 2021. एक चीज हम लोग पहले डायरेक्टली निकाल लेते हैं. एक यूनिट प्रोड्यूस करने में वेरिएबल कॉस्ट कितना लगता है, फिक्स कॉस्ट कितना लगता है, वो डायरेक्टली यहां से निकल जाएगा. टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा. मटेरियल कितना है, मटेरियल कितना चाहिए 10 kg करके 10 kg चाहिए एट द रेट 0.50 पर kg. टोटल कितना होगा 5 रुपीज. उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट लेबर
लेबर कितना चाहिए 1.5 1.5 आवर्स एट द रेट 4 पर आवर, कितना होगा 6। देन वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड कितना चाहिए 1.5 आवर्स एट द रेट 1 पर आवर, सो इट इज 1.5। ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। बाकी तो नेक्स्ट वाला क्या है, फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है 12.5, ओके 12.5। सो हमें Q3 का कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट ऑफ Q3 निकालना है ना, Q3 का निकालना है। Q3 में हम लोग कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 17,000 यूनिट्स एट द रेट 12.5 एट द रेट 12.5। दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। उस पर ऐड करेंगे हम लोग कितना 90,000, सॉरी नॉट 90,000, फिक्स कॉस्ट कितना होगा, फिक्स कॉस्ट कितना होगा 1,80,000, मतलब 90,000 इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, मेरा 90,000 लेबर आवर करके 2 रुपीज करके लगने वाला है, ठीक है। सो 90,000 इंटू 2, दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट, कितना आ रहा है 2,12,500 प्लस कुछ तो गड़बड़ है, ये 1,80,000 निकल रहा है ना, कुछ गड़बड़ है क्या है। फिक्स ओवर द 2 पर आवर बेस्ड ऑन द, ओके, बट इसमें क्या करना है डिवाइडेड बाय 4 करना है। वाई 4 करना है बिकॉज जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो एंटायर ईयर का है कि नहीं। दिस फिक्स्ड कॉस्ट इज फॉर द होल ईयर, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू डिवाइड इट बाय 4। कितना आएगा 45,000 है ना, सो दिस विल बी 257,500, ठीक है। Done. Then you can easily find out the total production budget. Total production budget for entire year. entire year में कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग 64,000 यूनिट्स, एंड वेरिएबल कॉस्ट कितना है 12.5 करके, और फिक्स कॉस्ट कितना है 90,000 इंटू 2, ये तो फुल ईयर का ही होगा क्योंकि हम लोग एंटायर ईयर का निकाल रहे हैं। कितना 8 lakhs and 1,80,000, so this is 9,80,000, okay, understood? Any doubt? Can we move on to the next question? Any doubt? Biswajit, Manjita, Rajkishore? Okay, good, then there is no doubt.
इस क्वेश्चन में पेन एरिया क्या था, प्रॉब्लमेटिक एरिया कौन सा था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, सिर्फ दिस वन है ना। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, ये वाला एरिया में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। ओपनिंग स्टॉक का गुड क्वेश्चन, बट ओपनिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट होगा, यू टेल मी। कुछ उसका ट्रीटमेंट नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में व्हाट दे हैव डन इज दे हैव ऑलरेडी स्टेटेड कितना प्रोड्यूस करना है, ऑलरेडी दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है कि 1/3 इस महीना का, फिर नहीं कैसे होगा, क्या वो बेचेगा, बिल्कुल बेचेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अच्छा क्वेश्चन है कि इस चीज़ का यूटिलाइजेशन क्या है, ये 4000 यूनिट जो ओपनिंग स्टॉक बोला है ना, इसका यूज़ क्या है। एक क्वेश्चन में देखो प्रोडक्शन का बारे में बोला है, सेल्स का बारे में नहीं बोला है। प्रोडक्शन होगा 2/3 ऑफ द करेंट क्वार्टर सेल्स, करेंट क्वार्टर का जो सेल होगा उसका 2/3 सेल्स आपका दिया हुआ, सिंपल लॉजिक यूज करना है, उसमें ओपनिंग वाला सेल होगा कि नहीं वो तो सोचना नहीं है ना, कंफ्यूज कंफ्यूज करने के लिए। मतलब एक तरीका से मैं समझाता हूँ कैसे। 12,000 यूनिट्स है, आप बोल रहे हो ये ओपनिंग जो 4000 यूनिट है वो सेल करेगा कि नहीं, सेल करेगा, कैसे करेगा, 4000 ओपनिंग है, आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, 12,000 का कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, 2/3 ही प्रोड्यूस कर रहे हो, और बाकी जो नेक्स्ट मंथ का 1/3 है, 15,000 का 1/3 है, ये कब के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, नेक्स्ट मंथ के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो। ये वाला जो है नेक्स्ट मंथ के लिए, और ये वाला जो है करेंट मंथ के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो। तो इसका कितना है, 8,000 आया, आपका ओपनिंग था 4,000, दोनों मिलकर कितना हुआ, अल्टीमेटली 12,000 यूनिट सेल करने हैं आपको, है ना। सिमिलरली इसी लॉजिक पे जाओ, इसी लॉजिक पे अगर जाऊं, ओपनिंग स्टॉक इस स्टेज में Q2 में ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, नॉट 5,000, ओपनिंग स्टॉक कितना होगा 4,000, इसका 1/3 बचा रहेगा ना। सेकेंड क्वार्टर में 12,000 का 1/3 बचा रहेगा, हाँ एक बार फ्लो समझाता हूँ। देखो आपके पास ओपनिंग है कितना, 4,000 ओपनिंग है, ठीक है। आपने प्रोड्यूस किया कितना, 8,000 प्लस 1/3 ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब 5,000, ठीक है। आपने सेल किया कितना, 12,000, बचा कितना 5,000, मतलब ये वाला जो एक्स्ट्रा 1/3 प्रोड्यूस करो वही बच रहा है, ठीक है। फिर ये वाला Q2 का ओपनिंग बन जाएगा, 5,000 ओपनिंग बन जाएगा, ठीक है। फिर इसका 2/3 मतलब 11,000, हाँ 2/3 10,000, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ का, नेक्स्ट क्वार्टर का 1/3 मतलब 5,500। आप सेल कितना कर रहे हो, 15,000, देखो ये बैलेंस ये वाला ही बचेगा 5,500, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा नेक्स्ट मंथ का 1/3 हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट विल बी द क्लोजिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक हम लोग सेल कर दे रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन जो 2/3 है वो हम लोग सेल कर दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर, थैंक्स फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, अशुभ अशुभ कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट X and Y are forecast of units to be sold in the first 5 months is given below। दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं X and Y। अदर इंफॉर्मेशन क्या क्या है, डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट दिया हुआ है, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स। देयर विल बी नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ एनी मंथ, तो वर्क इन प्रोग्रेस कुछ नहीं है, ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट्स
in units equal to half of the budgeted sales of the next month should be in stock at the end of each month. मतलब कि नेक्स्ट मंथ का जितना भी आपका सेल है, बजटेड सेल है, उसका हाफ स्टॉक रखना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक रखना पड़ेगा. ठीक है, इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड मार्च. ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू prepare production budget for April to June and summarize the production cost for the period. Easy है? You'll be able to solve it. करवाना है? करवाना है क्या? हो जाएगा? हो जाएगा. सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है. ओपनिंग स्टॉक कितना होगा इसका? ये नेक्स्ट मंथ का सेल्स है ना, ये नेक्स्ट मंथ का सेल्स है, तो इसका ओपनिंग स्टॉक कितना बन जाएगा? इसका हाफ, इसका 1400. ठीक है. नाउ यू माइट आस्क लास्ट मंथ का क्या होगा, इसलिए जुलाई तक बनाने दिया है, ना कि अगस्त तक. अगस्त तक बनाने देता मुझे पता नहीं होता कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ का डेटा नहीं है. सो जुलाई तक बनाने दिया है. सो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? इसमें 1400 और इसमें 800. ठीक है. तो विश्वजीत, राजकिशोर, मंजिता, try to solve it on your own. Okay. चलो आंसर्स मैं लिख देता हूँ खाली, है ना, ताकि कंफर्ट आए. सो बजटेड प्रोडक्शन जो निकलेगा, आगे बजटेड प्रोडक्शन निकलेगा एक्स का 6500 एंड वाई का 9400. ओके. and total cost of x and y combined जो निकलेगा 4,12,000. ओके. ठीक है. Next, Entech Limited, an electronic gadget manufacturer, has prepared sales budget for the next few months. In this respect, following figures are available. Sales figures दिया हुआ है, sales का budget दिया हुआ है. Apart from other materials, 2 units of batteries required to manufacture a gadget. ठीक है. इसके अलावा क्या चाहिए? 2 units of batteries. The company wants to hold stock of batteries at the end of each month to cover 30% of the next month's production, and to hold stock of manufactured gadgets to cover 25% of the month's sale. ठीक है. बैटरी का स्टॉक कैसे चाहिए? 30 months of the next month's production. और मैन्युफैक्चर्ड गैजेट्स का क्या चाहिए? टू कवर 25% ऑफ द नेक्स्ट मंथ्स सेल. एक प्रोडक्शन का बारे में बोला गया, एक में सेल. ठीक है. 3250 यूनिट्स ऑफ बैटरीज एंड 1200 यूनिट्स ऑफ बैटरीज वेर इन स्टॉक्स इन 1 जनवरी. ठीक है. इसका मतलब क्या है? एक में प्रोडक्शन का बारे में बोला गया, एक में सेल्स का बारे में. ठीक है. आप एक गैजेट बना रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बना रहे हो, जिसमें एक यूनिट में
2 बैटरी चाहिए, ठीक है। और बैटरी का स्टॉक आप कैसे मेंटेन करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। तो एक काम करता है, मैं गैजेट का अगर प्रोडक्शन निकाल लो, गैजेट का अगर प्रोडक्शन निकाल लो तो बैटरी निकल जाएगा, रिक्वायर्ड कितना है उसका 25% मुझे 30% मुझे स्टॉक में रखना है, ठीक है, समझ आया। क्योंकि प्रोडक्शन का फिगर एज ऑफ नाउ हमारे पास नहीं है, तो पहले हमें प्रोडक्शन का फिगर चाहिए होगा, फिर देन ओनली विल बी एबल टू फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बैटरीज, राइट। डबल होगा, गैजेट का जितना प्रोडक्शन होगा बैटरीज का प्रोडक्शन उससे डबल होगा। ठीक है, क्या हो गया, नाइस। देखो एआई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। क्या बात है। हुँ? कैसे ऐसे कर सकते हो, लेकिन मतलब अच्छा नहीं दिखेगा देखने में, टीचर को भी समझ आना चाहिए ना। ऐसे करने से भी लास्ट में जाके समराइज कर देना आंसर को। ओके, सो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, गैजेट का प्रोडक्शन, है ना। सो प्रोडक्शन बजट ऑफ गैजेट्स, कैसे करोगे प्रोडक्शन, कैसे निकालोगे, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कितना महीना का निकालना है, 3 महीना का, जनवरी, फेब्रुवरी एंड मार्च, ओके। सो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ओके। सेल्स कितना है जनवरी का 5000, फेब्रुवरी का 6000 एंड मार्च का 7000। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है द कंपनी, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना है, 30% ऑफ द नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन, सो 30% ऑफ 6000 कितना आएगा, 1800, देन 30% ऑफ 7000 एंड 30% ऑफ 7500, कितना आ रहा है 2250, 7000 सॉरी, 7000।
ओके, सो ओपनिंग स्टॉक कितना था, यहाँ पे दिया 1200 ओपनिंग स्टॉक था मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यहाँ पे 1200, इसमें क्या होगा, ये वाला जो है ये इसका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, है ना, इसका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन कितना है 5600, कुछ मिस किया क्या हमने, क्यों मारा, वो सपोज टू बी 25% है ना, क्लोजिंग स्टॉक 25% ऑफ 6000 कितना 1400 1500, देन 25% ऑफ कितना 7000, कितना 1750, and here 25% of 7500, 1875, okay. So opening stock was 1200 and for this month यहाँ से आ जाएगा 1500 and यहाँ से आ जाएगा 1750, अभी बताओ कितना आ रहा है 5300, 6400, 250, अप्रैल का भी बनाना था ना, अप्रैल का भी बनाना था 7125, अप्रैल का भी बनाना है, सो 7500 एंड 25% ऑफ 8000 2000 हो जाएगा एंड यहाँ पे 1875, कितना है 7625, ठीक है, ये हो गया प्रोडक्शन बजट ऑफ गैजेट्स। अभी क्या बनाना है, प्रोडक्शन बजट ऑफ बैटरीज, हाँ हाँ सॉरी वही, मतलब बैटरी तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, परचेज ही करेगा, तो परचेज बजट लिखना है, हाँ सेम तो तरीका तो सेम ही है, तरीका वही है, परचेज और प्रोडक्शन है। ये कितना महीना का निकालना है, 3 महीना का, ठीक है। जनवरी फरवरी एंड मार्च,
सो कितना यूनिट्स चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैजेट्स। गैजेट्स प्रोड्यूस करने के लिए कितना बैटरीज चाहिए। सो आप अगर 5000 यूनिट्स 300 यूनिट जनवरी में प्रोड्यूस कर रहे हो, 2 बैटरी लगता है एक यूनिट में, तो टोटल बैटरी नंबर ऑफ बैटरीज कितना लगेगा 10,600। ठीक है, और लेकिन इसमें वो भी ऐड करना पड़ेगा हमें, नेक्स्ट मंथ का प्रोडक्शन का हिसाब से 25-30% भी ऐड करना है। ठीक है, ऐड 30% ऑफ नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन। ठीक है, पहले तो हम लोग ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा इसमें 13,000 और इसमें 14,000, हाँ सॉरी 12,500 एंड 14,250 ये आएगा। और 30% ऑफ द नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन भी हमें स्टॉक में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ का प्रोडक्शन यही है, ये है कि नहीं, इसका 30% रखना है। कितना आएगा 30% इसका 3750। यहाँ पे 30% ऑफ 14,250 कितना आ रहा है 4275। एंड इसमें कितना आएगा, इसका 30% ऑफ कितना 7625 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 15,250। ठीक है, 4575 टोटल कितना आ रहा है, टोटल बैटरीज रिक्वायर्ड for production 14,350। next ठीक है, इतना बैटरीज चाहिए, लेकिन मेरे पास ओपनिंग स्टॉक भी है। ओपनिंग स्टॉक है ना, कितना था जनवरी में ओपनिंग स्टॉक 3250। इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, ये वाला। ठीक है, 4275। सो बैटरीज कितना परचेज करना है, बैटरीज टू बी परचेज्ड। इसमें क्या किया हम लोग, वही किया है, मतलब जैसे सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। यहाँ पे सेल्स का जगह में वही हम लोग प्रोडक्शन ले लिया, प्रोडक्शन प्लस एक ही चीज है। ठीक है, मतलब रिक्वायरमेंट इंस्टेड ऑफ सेल्स हम लोग रिक्वायरमेंट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, कितना 11,100 13,025 14,550। so this is the answer। थोड़ा ट्रिकी था क्वेश्चन, है ना।
ठीक है। सो हाउ डिड वी प्रोसीड विद द क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि आपको गैजेट प्रोड्यूस करना है, गैजेट का रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, कितना कितना सेल्स होगा, गैजेट का सेल्स दिया हुआ है। और ये भी बोला गया कि गैजेट का साथ साथ आप गैजेट बनाने के लिए, एक गैजेट बनाने के लिए 2 बैटरी चाहिए, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक जो मेंटेन होगा वो गैजेट का मेंटेन होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, एंड बैटरी का मेंटेन होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैजेट्स, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या किया, गैजेट का प्रोडक्शन निकाल लिया, ठीक है। गैजेट का प्रोडक्शन कैसे निकाल लिया, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला है, 25% ऑफ द सेल्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है, वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बन गया। ओपनिंग स्टॉक कैसे निकाला है, जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो मेरा नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट मंथ का ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है, अदरवाइज जो प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा निकल गया गैजेट्स का प्रोडक्शन बजट। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, बैटरी का परचेज बजट बनाया। पहले तो मैं देखूंगा कि मेरा प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट कितना है। एक मुझे 5300 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, तो 2 बैटरी करके मुझे टोटल कितना चाहिए, 10600। उसके साथ साथ मुझे क्लोजिंग स्टॉक भी मेंटेन करना है, कितना, 30% ऑफ द नेक्स्ट मंथ्स प्रोडक्शन। नेक्स्ट मंथ का प्रोडक्शन मतलब रिक्वायरमेंट कितना है, 12500, उसका 30% मुझे स्टॉक में मेंटेन करना है। तो मेरा टोटल मुझे चाहिए 14350। उससे मैं क्या करूंगा, ओपनिंग वाला माइनस कर दूंगा। ये वाला टोटल नहीं करने से भी चलता, बट ठीक है मैंने कर दिया। ये वाला पार्ट इसके जैसे करना चाहो तो टोटल नहीं करने से भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक माइनस किया। कैसे, फर्स्ट मंथ का जो क्वेश्चन में दिया हो, उसके बाद नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स जो प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग है, नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द नंबर ऑफ बैटरीज टू बी परचेज्ड। क्लियर, एनी डाउट्स, नो। सेल्स ओवरहेड बजट, ठीक है। अपना प्रोडक्शन बजट हो गया भाई, सेल्स ओवरहेड as a cost and management accountant of MJK Limited, prepare a sales overhead budget for the month of January, February and March from the estimated given below. Expenses per month, advertisement, salaries, expenses of sales department, counter salesman salaries and dearness allowances, commission to counter salesman at the rate 1% of sales, traveling salesman's commission 10% on their sales and expenses 5% on their sales, ठीक है। तो ओवरहेड का बजट बनाना है, इजी है। हाँ सिंपल है, इसमें कुछ करने का है नहीं, इसमें सिर्फ ऐड कर दो और ये सिर्फ कमीशन कैलकुलेट करना है। वो जो काउंटर सेल्समैन का कमीशन कितना है, 1% ऑफ द सेल्स, मतलब इसका जो भी रिस्पेक्टिव मंथ का काउंटर सेल्समैन का कमीशन है उसका 1%। बस एक्सपेंसेस ही निकालना है और क्या। हाँ इजी है एकदम, कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ फॉर्मेट कैसे बनाना है, सिंपल सा टी फॉर्मेट में बना लो, ऐसा कुछ नहीं है। ये ध्यान में रखना, ये सब खर्चा जो है फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, ठीक है। वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन सा है, ये वाला जो परसेंटेज में मेंशन है ना, दीज आर वेरिएबल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आंसर होगा जनवरी का 17,300, 18,450 एंड 19,400, ठीक है। ये सेल्स ओवरहेड होगा। Pendex Limited has prepared the expense budget for 20,000 units in the factory. In its factory for a year as detailed below. Direct material rupees 50 per unit, direct labor
20 per unit, variable overhead 15 per unit, direct expenses 6, सेलिंग एक्सपेंसेस क्या है 20% फिक्स। ये एक्चुअली यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, ये उसमें आना चाहिए था, फ्लेक्सिबल बजट में आना चाहिए था, वही वाला है फ्लेक्सिबल बजट ही है, ठीक है ना, ये तो सक जाओगे। ठीक है, सिंपली इसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर दो, फिक्स्ड और वेरिएबल में। ठीक है, ये तो कम्प्लीटली 50 वेरिएबल है, 20 वेरिएबल है, 15 वेरिएबल है, 6 वेरिएबल है, इसका क्या होगा, ये सब में ये वाला पूरा एंटायर फिक्स्ड है। 15 को आपको 20% फिक्स में रखना है और बाकी वेरिएबल में रखना है, और फिक्स जो टोटल वैल्यू निकलेगा फॉर हाउ मेनी यूनिट्स 20,000 यूनिट्स, और वेरिएबल वाला पोर्शन जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स का हिसाब से वेरी करेगा, है ना, और फिक्स्ड वाला 20,000 का यूनिट्स का हिसाब से जो वैल्यू आएगा वो फिक्स्ड बन जाएगा। ठीक है, हाँ, फ्लेक्सिबल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, सेल्स भी हो सकता है, प्रोडक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। फ्लेक्सिबल मतलब दो लेवल ऑफ एक्टिविटीज दिया हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये लेवल ऑफ एक्टिविटी एक है 15,000 18,000 यूनिट्स के लिए निकालना है। ठीक है, इसका आंसर्स लिख दो। एक 18,000 यूनिट्स और एक 15,000 यूनिट्स। एटीन थाउजेंड यूनिट्स का आएगा 23,53,600 और पर यूनिट आएगा 129 पर यूनिट, और इसका आएगा 20 नॉट 129 129 नहीं होगा 130.75, इसका आएगा 20 14 and 134.26। ठीक है, shall we move on to the next question? ओवरऑल बजट, ओवरऑल बजट एक काम करता हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए रख देता हूँ। हाँ सब आता है इसमें, जैसे मटेरियल, लेकिन इजी है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भरा है बट कॉम्पिटिटिव इजी है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 12 मार्क्स का जैसे ये क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेते हैं, वेयर डिफिकल्टी लेवल वी कैन असेस, है ना। The cost accountant of a manufacturing company has provided you with the following details for the year 2015. क्या क्या फिगर्स है, डायरेक्ट मटेरियल्स 1,75,000, डायरेक्ट वेजेस 1 लाख, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख, अदर वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख, अदर फिक्स्ड कॉस्ट 80,000, प्रॉफिट 112 और सेल्स 750. During the year, the company manufactured two products, A and B, and the output and cost were as follows. Output कितना है 2 लाख of A and B का कितना 1 लाख. Selling price 2 and 3.5, direct material 0.5 and 0.75, direct wages 0.25 and 0.50. Variable factory overhead is absorbed as a percentage of direct wages. ठीक है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस का परसेंटेज में एब्जॉर्ब होता है। अदर वेरिएबल कॉस्ट हैव बीन कंप्यूटेड एज प्रोडक्ट ए का 0.25 यूनिट एंड प्रोडक्ट बी का 0.30 यूनिट पर यूनिट। During the year 2016, it is expected that the demand for product A will fall by 25% and for product B 50%. डिमांड जो है वो दोनों का कम होने वाला है। ठीक है, एक का by 25% and another by 50%. It is decided to manufacture further
अ प्रोडक्ट सी भी मैन्युफैक्चर करना चाहता है ये लोग, द कॉस्ट फॉर विच इज एस्टिमेटेड एज गिवन बिलो। सी का प्रोडक्ट आउटपुट कितना होगा 2 लाख, सेलिंग प्राइस 1.75 होगा, डायरेक्ट मटेरियल 0.50, डायरेक्ट वेजेस 0.25। It is anticipated that other variable cost will be same as for product A। प्रोडक्ट A का जितना वेरिएबल अदर वेरिएबल कॉस्ट था इसका भी उतना ही रहेगा। कितना था अदर वेरिएबल कॉस्ट 0.25 पर यूनिट। ठीक है, प्रिपेयर अ बजट टू प्रेजेंट टू द मैनेजमेंट शोइंग करेंट पोजीशन एंड द पोजीशन फॉर 2016। अभी का पोजीशन और 2016 में क्या होगा उसका पोजीशन कंपेयर करके दिखाना है। नहीं होगा? ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थोड़ा सोचने का ट्राई करो कैसे अप्रोच कर सकता है इसको। ठीक है ना, कुछ नहीं, सिंपली नेक्स्ट ईयर का जो निकालोगे 2 लाख का कितना बन जाएगा आफ्टर 25% रिडक्शन 1.5 लाख बन जाएगा। प्रोडक्ट बी का कितना बन जाएगा 50% रिडक्शन में 50,000 यूनिट्स। उस हिसाब से सेलिंग प्राइस आप निकाल लोगे। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल निकाल लोगे, डायरेक्ट वेजेस निकाल लोगे, ऑलरेडी रेट्स गिवन है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या बोला गया, वेरिएबल फैक्ट्री ओवर एब्जॉर्ब्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। क्या परसेंटेज है डायरेक्ट वेजेस जो निकलेगा, यहाँ पे देखो 100% से हो रहा है ना। एब्जॉर्प्शन रेट क्या है यहाँ पे 100%, लेकिन हाँ 100% से हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो डायरेक्ट वेजेस निकलेगा है ना, सेम अमाउंट वेरिएबल उतना ही 100% ही होगा। एब्जॉर्प्शन सेम रेट में है ना, 100% में है, तो जितना डायरेक्ट वेजेस होगा उतना वेरिएबल कॉस्ट भी उतना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है अपना ये अदर वेरिएबल कॉस्ट है ना। अदर वेरिएबल कॉस्ट का रेट ऑलरेडी गिवन है 25.30 और सी का कितना होगा 0.25 ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद कुछ नहीं है, बाकी फिक्स्ड वाला है। फिक्स्ड वाला हम लोग को पता है कि उसको टोटल में निकालना है ना कि इंडिविजुअली। ठीक है ना, क्योंकि ये जो 1 लाख है ये सारा प्रोडक्ट के लिए है, ए बी सी तीनों के लिए। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा अच्छा से करेंगे। ओके, सो लेट अस कंक्लूड द क्लास हियर। थैंक यू।